Hello everyone in the Ansarkari, and today is the last session on rights we are going to conduct, where we will skim through the areas which have been left out, and in the last of the session we'll be talking about the main question on the fundamental rights and the associated parts. So let's begin. We'll see what are the various provisions we should understand. So the very first thing we have the definition of state which we talk. जिसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट both union and state government, parliament, both state legislature and union parliament, local authority, development authority, PSUs, everything is a part of state under Article 12. Then Article 13 we talk that all laws which are inconsistent and within derogation of fundamental rights, यानी ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट का जो फंडामेंटल राइट्स को डिलीट करता हो, एब्रोगेट करता हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हो, so that will be inconsistent provided there are some exceptions in every fundamental rights which we talked in the previous video, so you can watch there. So we have clause 3 of Article 13 in its ambit include law made by the parliament. तो आर्टिकल 13 के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं वो हमने बात की है. पार्लियामेंट्री लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ, ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स बनाते हैं, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशंस. एंड द इंपॉर्टेंट नोट हियर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और बिल इज नॉट अ law under the definition under the category of Article 13, but still it is subject to the judicial review as a part of the judicial review power of the Supreme Court and the High Court. Then Golden Triangle we studied that in the IR Coelho case it was mentioned that Article 14, 19 and 20 are supplementary, they coexist each together, and deleting one article has a direct impact on the second and then the third part itself. So they are considered as a golden triangle. Article 14 provides equality, 19 freedom, and 21 the overall freedom and the right to life and personal liberty, which is in itself a very major right which includes everything. Then 14 to 18 we studied equality and social, political, economic equality we studied. Then the rule of law, which is an idea. Rule of law, which is an idea, it is taken from the British Constitution, and there it was propounded by jurist A.V. Dicey. So equality before law and equal protection of law, there are two minute things which we can look out. That equality before law is negative in application because equality before law कहता है कि सब समान है, कानून के सामने सब समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी हर किसी को एक पकड़े पर तोल के देखती है इक्वालिटी बिफोर लॉ. लेकिन ऐसा एप्लीकेशन में नहीं कर सकते हैं when we have economic inequality, when we have political, social, economic equality, when we have historical injustices, marginalized society, minorities, the number of ups and downs when we have in our society. So we have to create level playing field, and that is why we have the second provision, which is more broader and much positive, and that is considered as the equal protection law. I gave the example in the earlier video also, so you can watch there. And manifest as rule of law promotes equality and manifest as justice. So in the equality before law, the primary application is of the equality, the primary application is of the law. But in the equal protection of law, which is the second part of the Article 14, it provides the justice and particularly the equity. यानी आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा. आप एक समान हैं, उसके ऊपर भी एक अलग तरीके की इक्वालिटी है जो इक्विटी को प्रमोट करती है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव बोथ द प्रोविजंस, बट अगेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज मच मोर ब्रॉडर एंड wider in its application also. So Pravesh, here when we talk about affirmative action, so that would fall under which of these two categories? Obviously in the part 2, equal protection of law. Okay. Then in the Maneka Gandhi versus Union of India 1978 case, it is again showing the golden triangle of Article 14, 21 and 19. So petitioner in this case contested the legality of the government seizure of her passport. और जब कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो कि बताता है पर्सनल लिबर्टी, ये इंक्लूड करता है इंटरनेशनल साइट को, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 19 डील्स विद द इंटरनल मूवमेंट within the country and Article 21 includes within the movement as well as the outside movement. तो जब हम बाहर जाने की बात करते हैं, that is a fundamental right under Article 21. And
पेटिशनर का जो पासपोर्ट आपने लिया है आर्टिकल 14 जिसका वायलेट हुआ, इट वाज आर्बिट्रेरी एंड नॉट इन कंफर्मिटी विद द लॉ. So this is how the Supreme Court and the High Court timely decide the cases on the parameters and on the um, arc of Article 14, 19 and 21. In the case one and Bharti case, we studied that Mednoor Mutt के जो संत थे उनका नाम श्री केशवानंद था. स्टेट ऑफ केरला का मैटर है जिसमें आर्टिकल 14, 19 एंड 21 अगेन राइट टू प्रॉपर्टी इसमें एक इंटैग्रिंग पार्ट था, जिसके बाद प्रोपाउंड की गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. आर्टिकल 15 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. जैसा कि पहले डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था पब्लिक एरियाज पर, जैसे कि हम वेल की बात करें, टैंक की बात करें, सीट की बात करें, so that is completely prohibited and we have the parliamentary law also which regulates these kinds of activities. The 93rd Amendment Act of 2005, it provided special provision for the economic weaker section and 10% reservation on the similar lines of the OBCs in the educational institutions, but this act was not implemented. The reason because of Indra Sahani case, which mandated the 50% threshold of the reservation criteria. And finally, we have the 103rd Amendment Act in 2019, which established EWS reservation in reality, which is providing a 10% reservation, and the threshold limit has been exceeded to 60%. So now only the 40% reservation, 40% seats are for general category, and the 60% have been reserved. And the reason and the significance behind doing this is to provide the economic opportunities also on the equality parameters. If we talk about the state governments, if we take the example of Tamil Nadu and other states, so they have already exceeded the 50% threshold limit. So in state governments and in the state, the limit of reservation is already exceeded from the 50%, and in the center we have the 60% threshold. But again, the various PILs have been filed, so it's a wait and watch matter. Article 16, we also talked. So Mandal case 1992, this provided the reservation to the OBC, other backward classes, on the basis of social and economic backwardness, and 27% reservation on the central, in the central list. So I think in the state governments, we have also the OBC list, and in the central level, we are also having the OBC list. Then there are some dominant sections like Jats in Haryana, UP, and Rajasthan. They are also demanding the inclusion in the OBC category. Then the Patidars in the Gujarat and the Marathas also in the Maharashtra region. And we have a commission also, National Commission for Backward Classes, which was a statutory in the 1993, because the Parliament laid out a bill and it formulated as an act, after which the National Commission for Backward Class became a statutory body, and under Article 338B, it was laid out. But in the year 2018, by first 102nd Amendment Act of 2018, it has been conferred the constitutional rights. So now it is a constitutional body. And again, we'll be studying what are the provisions, what are the jurisdictions of the constitutional and non-constitutional bodies in the later part of the course. But very briefly, I'm telling that constitutional body status, if this commission has got, so it will be having civil and the quasi-judicial powers. It can summon, sue, notice, session, and call the persons. It can visit the jails to look out that whether the premises have been assigned to the trials of the OBCs are properly sanitated, having the sanitation and hygiene facilities or not. Have they been subjected to sexual assault or not? Have they been subjected to the police executive arbitrariness or not? So these kinds of provisions, and annually they have to produce a report to the governor in the state level and to the president on the central level, which is duly considered and debated in the parliament, not only by the parliamentarians, by the parliamentary committees also. Then Article 18, abolition of titles, we studied. And here are some cases which we can look out in the Article 19 itself. Rangarajam versus P. Jagjivan Ram, 1989. यहाँ पर बात हो रही है कि right to peaceful assembly is a part of your right to freedom of expression under Article 19, provided it should be very much non-violent. Then Cricket Association of Bengal versus Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. यहाँ पर बात हो रही है कि
आपका जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल ग्रुप है वो किस तरीके से आपके फ्रीडम आर्टिकल 19 में यूनियन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि राइट टू क्रिएट एसोसिएशन इज अ बेसिक राइट दैट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मर्दिकार 1991, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू लिव एंड सेटल इन क्रूशियल कंपोनेंट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट टू द आर्टिकल 21 दैट इज प्रोवाइडिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी आप कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग द डोमिसाइल क्राइटेरिया, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग द लैंड एक्विजिशन क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हिच हैज बीन मेड आउट देयर। देन आर्टिकल 21 के अंदर जो फेमस जजमेंट्स है उनको हम देख लेते हैं। मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन जब हमने बात की कि पासपोर्ट को सीज किया गया, लेकिन ये बात कही गई कि एक्सटर्नल अगर आप मूवमेंट करते हैं आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड not assigning the passport on any ground is not a justiciable thing, is against the violation of your fundamental right article 21. Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, यहाँ पर बात हुई कि राइट टू लिवलीहुड इज अगेन योर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आपको राइट टू ब्रीथ भी है, आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, आपको राइट टू लिवलीहुड है, आपको जितना आप कमाते हैं, जितनी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आपको सैलरी भी मिलनी चाहिए, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 20। So ADM Jabalpur versus State of Madras. No, this is not that. ADM Jabalpur versus Shiv Kant Shukla 1976. So this is also considered a very famous case as far as the fundamental rights chapter is concerned. It provided that government Supreme Court upheld the government power to detain individuals without trial during a state of emergency and effectively suspending the right to life and personal liberty under Article 21. तो कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रिव्यू को नहीं प्रोवाइड करता है डिटेंटिव के लिए और अनचेक पावर देता है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी, और पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 22 सब पार्ट 2 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। और यहाँ पर बात हुई कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का यूज, अब्यूज और मिसयूज भी गवर्नमेंट कर सकती है, और उसके ऊपर जरूरत है कि कोई अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि 1978 के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, जिसमें बात की जाती है कि 3 महीने की आपको सजा दी जाएगी और उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठेगा जो आपकी सजा को घटाएगा या फिर आपको रोक देगा। लेकिन दोबारा से 3 महीने की जो बात थी, इस कमीशन ने कहा इसको घटाकर 2 महीने कर दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 3 महीने हैं। तो अगेन वी हैव मोर एग्जीक्यूटिव पावर एज फार एज द इमरजेंसी इज कंसर्न्ड एंड पार्ट 2 ऑफ द आर्टिकल 22. So what is this case is all about? UP slapping case. Supreme Court says state failed in its role. तो ये एक इंसिडेंट है, एक टीचर का प्राइवेट स्कूल में मुजफ्फरनगर जिला जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट को स्लैप किया, 7 और ओल्ड मुस्लिम क्लासमेट, और टिस जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेस्ड इन मुंबई, टिस टू इंटरवीन एंड हेल्प विद काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड एंड हिज क्लासमेट एंड आर्टिकल 21 क्लोज ए इट सेज दैट फंडामेंटल राइट ऑफ चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि हमने बात की कि इसके ऊपर हमारे यहाँ पे 2005 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है। और so delay in filing FIR. So these are the things. So now we are heading towards the questions and then we will be winding up the session of the fundamental rights. So we talked about these 3 questions in the yesterday's session. So today we are starting from here. What are the constitutional limitations on the free movement of Indians throughout the country? So I may ask this question to Mansi. Can you please give some points on this? Okay, so this is a part of fundamental rights under Article 19, that is the free right to free movement across India.
and that can be for the purpose of, again, inhabitation or from the perspective of livelihood. So limitations talk about reasonable restrictions at wherever you are, like free movement would not be in the strategically important locations like the nuclear installations or closer towards the border areas. And the even the purpose of movement, that can be a part of the fundamental the reasonable restrictions. And apart from this, even like it can be curtailed during the national emergency also. So I would add up these points. Okay, thank you. Adding, बोलिए. adding to that, some areas, for example, preservation and conservation of the tribals and their culture, for example, ILP, inner line permit in Arunachal Pradesh, Mizoram, then it can be based on the security perspective in Jammu Kashmir, Ladakh. So there are some, all these areas are considered. You can continue, Pravesh. Okay. So in the constitution, there are only two types of restrictions that are mentioned. Clearly, there are two restrictions which have been mentioned. Number one, the interest of जनरल पब्लिक, यानी आप जनरल पब्लिक को अगर आप हर्ट करते हैं तो आपकी मूवमेंट को रोक दिया जाएगा. जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट होते हैं तो सेक्शन 144 141 लगाई जाती है. उसके अंदर आपका 4 लोग खड़े नहीं हो सकते, एडमिनिस्ट्रेशन आपको हटा देता है. आप वायलेंट करते हैं, आप आर्म्स के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, आप ट्रेन रोकते हैं, आप हाईवे जाम करते हैं, इन सारी कंडीशंस ये मीट करती है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. आप ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते. जब हम बात करते हैं शाहीन बाग केस की, जब हम बात करते हैं सड़क पर नमाज की, जब हम बात करते हैं चक्का जाम की, जब हम बात करते हैं रेल रको अभियान की, तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहली कंडीशन को मीट करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब. एनी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एंट्री किसी भी आउटसाइडर की ट्राइबल एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, चाहे वो कोई भी इंसान हो और कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब. क्या रीजन है? ताकि उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो कस्टम है, वो सेफगार्ड किए जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लोटेशन से बचाया जाए. और इसके अलावा हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो उनको रोका जाएगा, उनकी मूवमेंट को. किस बिहाफ पर? पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरालिटी को. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई 2 लिमिटेशंस और सुप्रीम कोर्ट ने बताई है 1 लिमिटेशन प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर कि उनको नहीं जाना दिया जा सकता. और जिन लोगों को, जो लोग प्रोस्टिट्यूट्स के प्रोफेशन में हैं, उनको जाने से क्यों रोका जाता है? सिर्फ एक ग्राउंड पे, दैट इज अ हेल्थ ग्राउंड, बिकॉज इट माइट लीड टू द प्रॉब्लम्स लाइक एड्स एंड एचआईवी. सो दीज आर दी प्रवेश, क्लियर. यस. जो आपने बताया विद रिगार्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ऐसा कोई जजमेंट स्पेसिफिक? क्योंकि Okay, I'll be looking and then I'll be uploading on the group itself. तो we can also question that it is restricting the prostitute from traveling all over India based on the health problem, AIDS. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते इसको, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एड्स ऐसे फैलता तो नहीं है until and unless there is a direct contact. So if the prostitutes will go in scheduled tribes, so what do you think? There will be no direct contact. जाने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, the तो main आप thing बता is देंगे, आप बता दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू जजमेंट, स्पेसिफिक जजमेंट. the main thing is the profession is curtailed, not the people are curtailed. Obviously they can go, but if they will perform that kind of profession in these critical areas, so it might lead to excess pressure on the administration to first of all identify, then to deal, then to mitigate and adapt those people, because it is highly challenging. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ आम जनता का इलाज नहीं होता है, आप ट्राइबल्स का कैसे करेंगे? तो ऐसे तो रिजर्वेशन के ऊपर भी बोला जा सकता है कि जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ पर आर्टिकल 14 के अंदर 2 प्रोविजन है. पहला कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि आमतौर पे देखोगे तो सब समान है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सब समान तो है लेकिन उस समानता में भी असमानता है, तो उसको मिटाने के लिए इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एफर्मेटिव एक्शन जिसकी हम बात करते हैं, वो दी जाती है.
So Sachin, Divya, Achal, Prerna, anyone has any questions? You may ask. Otherwise, I'm continuing with the second question. So now, what are the reasonable restrictions mentioned in the Constitution accompanying the fundamental rights? तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिकल जो 14 से 19 जब बात 14 से 18 जब हम बात करते हैं इक्वालिटी, तो उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और 19 से 22 तक, 23, 24 और 25 से 28 एंड 29, 30 तक हर जगह जो कॉमन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो यही है: पब्लिक लॉ, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट में तो प्रोस्टिट्यूट के ऊपर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ना प्रवेश प्रोस्टिट्यूट के ऊपर में, यहाँ लिखा हुआ है मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वो तो मैंने आपको एडिशनल बताया। फंडामेंटल राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फंडामेंटल राइट आई थिंक इट इज 19 इसमें रिस्ट्रिक्शन में, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर फॉरेन कंट्रीज, एंड लास्टली इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ये रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(6) और आप एडिशन टू योर पॉइंट्स। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि किस तरीके से आप जो है फेयर प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं, और जो फी का प्रावधान है वो गवर्नमेंट आपसे लेती है। उसमें भी 3 है रिलीजन वाले में, उसमें पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें सेम है हर फंडामेंटल राइट। आप मूवमेंट में भी नहीं कर सकते। Then state the amplitude of Article 21 of the Indian Constitution। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताता है। तो इसमें राइट टू एजुकेशन का भी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब कितने इसके। तो इसमें लिवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, लीगल एड, कस्टडी के अंदर आपका हरेसमेंट ना हो, वुमेन को डिसेंसी से और डिग्निटी से ट्रीट किया जाए, आपकी रेपुटेशन, अगर आपकी रेपुटेशन के ऊपर पब्लिकली कोई आपको कमेंट कर देता है तो आप उस पर डेरोगेटरी का एक्ट लगा सकते हैं। अगर आपका गलत कन्विक्शन हुआ है तो आप जजमेंट के लिए अपील कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस या फिर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट इज अंडर आर्टिकल 21। इवन यहाँ तक कि आपका सोना, खाना, शादी करना, दिस वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट राइट टू मैरिज ऑफ आर्टिकल 19 और 21। तो सारी ही चीजें आर्टिकल 21 के अंदर है। एम्पलीट्यूड या क्वेश्चन पूछा है प्रवेश, आई थिंक इट इज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 21 को ब्रॉडन कर दिया गया ओवर द ईयर्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, उसके बाद फिर राइट टू प्राइवेसी 2017 में, डीक्रिमिनेशन ऑफ द 377 आईपीसी, सब आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दिया गया, ब्रॉडन कर दिया गया। मेरा इंटरप्रिटेशन आप ऐड कर दो। तो इसमें जो आपने बताया एम्पलीट्यूड बढ़ाया गया, मैं वो बता देता हूँ कैसे बढ़ाया गया। 1950 के अंदर गोपालन केस है, जब बात होती है कि आर्टिकल 21 है वो खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए है। अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे तो आपके आर्टिकल 21 के अंदर जो भी राइट दिया हुआ है वो एंटरटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन मेनका केस 1978 में बात की गई कि अगर पार्लियामेंट लॉ भी बना देगी तो भी आपका आर्टिकल 21 अपहोल्ड ही रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 21 रहता है आपका। उसके बाद जो आर्टिकल 21 है इसका एम्पलीट्यूड पहले जो था सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड था, लेकिन अब 3 चीजों से और रिलेटेड है। आर्टिकल 21 के अंदर आपका इंडिविजुअल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन सोसाइटी का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। इसके साथ साथ एनिमल का भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तीसरी चीज, जो आर्टिकल 21 है वो खाली प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात नहीं करता है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात करता है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी का एक्टिव रोल है वो आर्टिकल 21 के अंदर इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 21 इन इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग इन द इंटेंजिबल फॉर्म द ड्यू प्रोसेस पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टू द हाई कोर्ट व्हेन दे आर एनलार्जिंग
and increasing, in the words of Washik, amplitude of Article 21 of the Indian Constitution. So, Mansi, any point from your side? No, Pravesh, we can continue. Okay, thank you. So now this question we have: what is the right to life and personal liberty, and how have the court expanded in meaning in different rights? So again, this we have talked in the upper part. Does the right to clean the environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and judgments of the apex court in this regard. So मान से आप बताइए इसके ऊपर. तो इसमें जो सब क्लॉजेज है अंडर आर्टिकल 21, आई थिंक उसकी बात हो रही है द राइट्स विद इन द एम्बिट, तो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, लाइक राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी. सो राइट टू प्राइवेसी की वी कैन टॉक अबाउट राइट टू. नहीं, राइट टू प्राइवेसी. क्वेश्चन तो सिंपल आपसे ये कह रहा है कि राइट डज अ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यानी आप एनवायरनमेंट क्लीन का जो आपका राइट है, क्या उसके बिहाफ पर लीगल रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं क्रैकर्स के ऊपर दिवाली के टाइम पे? फिर बोल रहा है कि आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए. राइट टू प्राइवेसी नहीं है राइट टू मुशिका, आप बताओ. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं कि दिस फॉल्स अंडर द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. आपकी राइट टू जो हेल्थ है, क्लीन एनवायरनमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट हम बोल सकते हैं उसको. आप बताइए मुशिक. First question: does the right to clean environment entail legal regulation on the burning of crackers during Diwali? Under the ambit of the Article 21, every individual have the right to breathe clean air, and so that the whole जो negative positive liberty की बात होता है, there has to be certain reasonable restriction on those who are polluting the environment. For example, burning of crackers during Diwali, ये यूज किया सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट. और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर में भी केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन हैड गिवन डायरेक्शन ऑल banning of the crackers all over India during Diwali and even in Delhi also. So discuss the right of Article 21. Right of Article 20. Article 21 derived fundamental right, and it is based on the principle of accommodation and also the lens of the constitutional morality by the Supreme Court on each and every right that is for the personal liberty, dignity and life. तो इसको डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं. यस, इसका आंसर होगा शॉर्ट में. ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हाँ, हम एग्री करते हैं कि राइट टू क्लीन जो है एनवायरनमेंट, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, उसके बिहाफ पर लीगल रेगुलेशन लगाना जस्टिसेबल है क्रैकर्स पर, नॉट इवन ड्यूरिंग दिवाली बट इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डेज. क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर, जैसा भी मैंने कहा, आपके इंडिविजुअल राइट की बात नहीं है, सोसाइटी के भी राइट्स होते हैं. जो जानवर जी रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना है, उनके भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट्स आते हैं. तो आप अपनी खुशी के लिए बर्निंग क्रैक कर रहे हो, लेकिन उनका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यू इंडिविजुअल डू नॉट हैव ओनली राइट टू एंटरटेन अंडर आर्टिकल 21 योर राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज. कई ऐसे लोग भी हैं जिनको क्रैकर से प्रॉब्लम है. आप क्रैकर अगर जला रहे हैं अपने घर के अंदर जलाइए, आप बाहर क्यों जला रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास होते हैं सड़कों पे से, उनका एक्सीडेंट हो जाता है आपके क्रैकर्स की वजह से. आप बाहर मत जलाइए. अगर आपको जलाना है तो सफल और ये जो हेल्दी क्रैकर्स हम दे रहे हैं, आप वो जलाइए. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पर सिर्फ यही है, इन द नेम ऑफ आर्टिकल 21 any individual or any association of individual cannot exercise their rights over the large rights of the society, which includes the rights of wildlife as well as of the individual. Yes. So discuss the steps taken by government to check child labor and promote child welfare. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, जैसा कि हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 24 इसकी बात करता है, बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री. तो इसमें हमने देखा कि हजार्डस और नॉन हजार्डस इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन किया है, जिसमें कि दोनों में ही 14 ईयर जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड एज लिमिट रखी है, जो उसके नीचे आप कर ही नहीं सकते. इसके बाद सरकार ने आज तक क्या किया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गवर्नमेंट ने किया क्या है चाइल्ड वेलफेयर के लिए. तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही
2005 के अंदर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आया, जिसको नेशनल कमीशन का दर्जा दिया गया, जिसके पास सिविल कैसे जुडिशियल पावर है और टू मोटो एक्शन भी लेता है चिल्ड्रंस के खिलाफ, जुवेनाइल जस्टिस का इंश्योर भी करता है जुवेनाइल जस्टिस को। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, जैसे कि माइंस एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट है, सिगार एक्ट है। इन सबके अंदर ही जो बच्चों की लिमिट है काम करने की वो 16 साल है। इनके जो पर्क्स एंड अलाउंसेज है वो डिफाइंड है, इनकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो डिफाइंड है। इसके अलावा जो फॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको नौकरी दी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या किया है, 2006 के अंदर गवर्नमेंट ने बच्चों को किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में या फिर होम के अंदर 14 साल से जितनी कम उम्र के बच्चे हैं सबको प्रोहिबिशन है, आप नहीं लगा सकते उनको। 2016 के अंदर दोबारा से अमेंडमेंट किया गया एक कानून के अंदर जिसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर, आई थिंक ये ऐसा कानून है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसने बात की कि जो एडोलेसेंट है या फिर जो टीनेज चिल्ड्रन है उसके भी आप राइट्स को कैसे इंश्योर करोगे, किस तरीके से उनका जो है बॉन्डेड लेबर जैसी चीजें उनके साथ प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इज टेकिंग सम प्लान। सम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स वी कैन गिव कि हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है उसके खिलाफ हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद हमारा मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्टल है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं इस तरीके के केसेस। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आई थिंक 2016 दिस इज, उसके अंडर Yes. भी फास्ट कोर्ट्स होती हैं ऐसे मैटर्स को डील करने के लिए। तो अगर आपको कुछ अलग पॉइंट बताना तो बता दीजिए। Apart from that, Pravesh, there is a scope for rehabilitation and resettlement of the child laborers through the JJ Act 2016. CRY, केयर जो कमेटी है वो करते हैं, केयर क्राई कारा कारा कारा, हाँ सॉरी, CR है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट NGO दैट इज वर्किंग टुगेदर विद द गवर्नमेंट, दैट इज बचपन बताओ बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया। एंड थर्ड इज मनोदर्पण पोर्टल फॉर द चाइल्ड मेंटल हेल्थ इशू। वन एक्सेप्शन इज देयर, चाइल्ड लेबर वो बच्चे को कंसिडर नहीं किया जाता है जो अपने घर में खुद काम करते हैं या फैमिली बिजनेस में हेल्प देते हैं, हेल्पिंग हैंड देते हैं। तो एक एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 24 में। तो राइट टू रिलीजन हमने देख लिया था एंड फंडामेंटल राइट्स। Although the fundamental rights of Constitution of India and the Bill of Rights of US Constitution are similarly progressive, they have many differences too. तो इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरीके की चीजें बताते हैं, सब्सटैंटिव एस्पेक्ट एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट। यानी जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताते हैं कि सब्सटैंटिव चीज क्या है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को पावर भी देते हैं कि इनके बिहाफ पर आप कानून बनाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, वहां पर सिर्फ सब्सटैंटिव पार्ट दिया गया, प्रोसीजरल पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर जुडिशियल रिव्यू की पावर फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, अलग से दी गई है कोर्ट को। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वहां पर ही इंटेंजिबल फॉर्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। So these are the common difference between both the charters of the fundamental rights. Osik, if you have something else, you can add on. No, Pravesh. Okay. So present status of right to property as a fundamental right, जब हमने देख लिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 का, उसके तहत जो पार्ट थर्ड के अंदर आर्टिकल 30 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहां से हटाकर आर्टिकल 300 पार्ट 12 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो अभी वो नेचुरल राइट भी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये प्रेजेंट स्टेटस है राइट टू प्रॉपर्टी का। हमने इन डिटेल बात की है। एक्सेप्शंस क्या है अंडर आर्टिकल 31A-B-C, जो जिनका लिंक है डीपीएसपी से, कि अगर डीपीएसपी आर्टिकल 39B-C 9 शेड्यूल अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन करे तो भी किस तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो आर्टिकल 32 के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
जिसमें आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कन्वेंशन ये कि पहले आप हाई कोर्ट के अंदर जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए, लेकिन आपको डायरेक्ट जाने का भी अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दोनों ही कोर्ट जो है रिट की पावर है उनके पास 5 तरीके की रिट वो असाइन करती है, ताकि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है किसी इंडिविजुअल ने, किसी आर्बिट्ररी गवर्नमेंट ने, किसी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आपका जो राइट हनन हुआ है तो आपको उसका जस्टिस मिलता है। और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट है उसको पावर है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो प्रोविजन है उसको बढ़ा सके, जिसके तहत वो ना केवल सुप्रीम कोर्ट को बल्कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रिट इशू करने की पावर देती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा वर्कलोड है और फंडामेंटल राइट्स के हनन का मामला है अंडर आर्टिकल 32, तो पार्लियामेंट ऐसा कोई ग्रेव इंपॉर्टेंट मैटर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी असाइन कर सकते हैं कि आप इस मैटर में रिट दीजिए सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Yes, adding to that, Pravesh, two things I have to mention. First is High Court का ज़्यादा it has a more wider power with regarding to Article 226 as compared to Article 32 of Supreme Court. Second, this writ power makes the judiciary people centric, people justice डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि खुद सो मोटो भी दे सकते हैं रीट, और फिर कहीं से अगर मिला हो तो फिर दे सकते हो रेमेडीज करने के लिए। तो ओवरऑल इसलिए इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसलिए इम्पोर्टेंट यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 2 वर्ड में बोला जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्यों दिया जाता है? पहला, लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस और एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस, तो ये 2 एग्जैक्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और जो आपने बात की हाई कोर्ट की, तो उसमें हमने डिटेल चर्चा की थी कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की पावर है, दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव, दैट इज कोटर्मिनस विद द हाई कोर्ट एंड इट इज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट बट नॉट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, तो व्हाट एक्सप्लेन PIL? PIL क्या है? हु कैन फाइल इट? व्हाट आर द बेसिस whether it can be rejected by the court of law? तो इसमें हम देखते हैं कि जस्टिस PN भगवती को ओरिजिनेटर माना जाता है PIL का। इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इफेक्टिव इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यही होता है कि आपको कोई ऐसा जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है जिसके ऊपर एग्रीव्ड पर्सन के साथ इंजस्टिस हुआ है और वो जा नहीं सकता है, या फिर एग्रीव्ड पर्सन भी जा सकता है और आप एसोसिएटेड पर्सन भी उस मैटर से, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाकर PIL डाल सकते हैं। एक दर्जी बोलते हैं इसे, आप एक दर्जी डाल सकते हैं जिसके तहत कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी, डिसाइड करेगी और उस पर सोशल एक्टिविज्म के तहत एक्शन लेगी। तो जब हम बात करते हैं NGT की, एनवायरमेंट फोर्स की, तो सारे PIL के मैटर्स हैं। जब हम बात करते हैं फायरिंग ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली, दैट इज आल्सो द मैटर ऑफ PIL। तो इसके अंदर अब कुछ मैटर्स हैं जो कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर PIL एंटरटेन की जाती है। तो लोकस स्टैंडी, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकस स्टैंडी रिजल्टेड इन द राइज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। तो हम बात कर लेते हैं PIL, जो कि सबसे पहले USA के अंदर इसका ओरिजिन है 1960 के अंदर, और यहाँ पर इसको लोकस स्टैंडी का यहाँ पर क्या मतलब है कि लोकस स्टैंडी के हिसाब से जिस पर्सन का राइट छीना जाता है या फिर उसका हनन होता है, केवल वो ही रेमेडी के लिए कोर्ट जाता है। लेकिन PIL में इस राइट को रिलैक्स किया गया है, यानी केवल वो नहीं जा सकता है, उसके अलावा उससे एसोसिएटेड पर्सन, अगर मेरे सामने 10 लोगों को मारा जा रहा है और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, तो वो नहीं जा सकते, तो मैं भी उनके बिहाफ पे जा सकता हूँ। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कितना है